Good evening, everyone, and welcome to today's session of NutriLift 360. I am your host, Ruchita, and today we'll be discussing why do we need proteins. We're going to discuss some of the myths versus the facts. What is the right amount of protein? Do we really need to consume those 10 eggs that we have seen all our gym rat friends eating? Why should we even consume protein and how much? And what are the basic fundamental supplements? To understand all this and much, much more, we have experts who've walked the talk. To start the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's welcome him onto this virtual stage and listen to him very, very carefully. Over to you, Farooq. Thanks, Uchita. And good evening, everyone. Welcome to this exciting Friday session. I just hope that you had, an early dinner, done some exercise. Even if you could not go for a brisk walk, at least you should do something immediately after dinner, and that will really change your overall health. Yeah. Today, we are going to be talking about protein. It is one of the most misunderstood topics in our country. Even at the highest level of sports, this was an issue which took a long time for people to realize that Indian sports people lack protein. Imagine if Indian sports people lack protein, what do you think would be the condition of a normal person who does not have the knowledge, doesn't have the expertise, doesn't have the organization to talk to them about, the value of protein for the body? There are so many, myths about protein on the internet, and wisdom lies in differentiating fact from fiction. That is why you need to be connected with a community like this, where we can decipher the facts and fictions for you so that you can understand what's good for health. I have seen a lot of dietitians talk about, एक कटोरी दाल के अंदर enough protein होता है. When I ask them, do you have any idea as to what you're saying and how much protein would be there in one katori of dal? Okay, it would not be even 1/10 the requirement of your daily need. So please try and understand that protein is one of the major macronutrients, and with protein is the building block of life. And without protein, you cannot really function. Everything in your body depends upon protein. And protein is the building block of life. You need to take it, from your diet. And if you're not getting it from your diet, you have to supplement it. We've done a lot of experiments. We have tried a lot as to how to fit it in the present diet. We found that we could not. And hence, we needed to supplement it with good plant-based protein. Okay, there are a lot of talks about whey protein in the market, soy protein. It's better to be on this community and understand from the person who's invited you over that what's the best protein for you and why you should take it. You are very fortunate today. We have somebody, okay, who had no idea about what protein was, but once he got onto the community, he got a very good idea of what protein is, changed his diet from a carbohydrate-based diet to a protein-based diet, all right? And he changed his life around.
He had many medical challenges. All of them started to disappear. So it is good to listen to from somebody who's been on both sides of the scale. So without wasting much of his time, please help me welcome Manoj Rawat on the stage. Over to you, Manoj. थैंक यू वेरी मच फ़ारूक। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप नहीं होते मेरे ज़िंदगी में तो शायद मेरी ज़िंदगी वो नहीं होती जो अभी है। और ये मैं अभी रियलाइज़ इसलिए भी कर सकता हूँ क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ लोगों को कि जो मेरे जैसे थे और उन्होंने कुछ अपने लाइफ में नहीं किया और फिर अब क्या हो रहा है उनके साथ। तो अब आगे चलते हैं और आज के बारे में बात करते हैं। इज़ माई स्क्रीन विजिबल नाउ? Yes, Manoj. ओके, थैंक यू वेरी मच वेदा। तो बात ऐसी है कि मैक्सिमाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन पे ले जाने से पहले मैं इस चीज़ पे ले जाऊंगा कि मैं नॉर्मली लोगों को एक सवाल पूछता हूँ कि सपोज एक 20-25 फ्लोर की या समझो 100 फ्लोर की भी कोई बिल्डिंग है, या इनफैक्ट पकड़ो 4 फ्लोर की भी कोई बिल्डिंग है, क्या एक इंसान उस बिल्डिंग को गिरा सकता है? सडनली सब आंसर जब देते हैं तो वो देते हैं कि नहीं, हम नहीं गिरा सकते, हम उसको नहीं तोड़ सकते, नहीं गिरा सकते। तब मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपने रोज़ एक ईंट निकालनी चालू करी नीचे से और रास्ते से उसके जो बेसमेंट है, और बेसमेंट नहीं सॉरी, जो उसके पिलर्स हैं उनको थोड़ा 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 उसको तोड़ने लगे आप, तो क्या होगा? तो बोलते हैं हाँ, फिर एक बिल्डिंग पूरी गिर जाएगी। बोला सही, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देखो कि अगर उस बिल्डिंग की पिलर की हर पत्थर या फिर उस बिल्डिंग का हर एक ईंट अगर मजबूत है तो क्या बिल्डिंग गिरेगी? तो फिर आंसर आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं गिरेगी। और इसी चीज़ को अगर हम अपने लाइफ में डालें, और अगर हमारा शरीर अगर बिल्डिंग है तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट है जो कि ईंट है उसको बोलते हैं सेल, CELL, सेल, हिंदी में बोलते हैं कोशिका। अगर आप उस कोशिका को समझने की कोशिश करो कि वो किससे बनती है, खराब क्यों होती है, ठीक कैसे रह सकती है, आपका सारा काम हो जाएगा लाइफ का। 80 to 90% आपकी जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। और मैं सेल की बात क्यों करता हूँ? क्योंकि सेल बनने के लिए जो सबसे पहले लगता है वो है प्रोटीन। उसमें और भी चीज़ें लगती हैं बट मेजर पार्ट इज प्रोटीन। खराब भी होता है, रिपेयर करने के भी लगता है प्रोटीन। ओके, तो यहाँ से अगर आप समझ जाते हैं प्रोटीन का इंपॉर्टेंस, तो हम अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि 10 में से 8 लोग हिंदुस्तान में जितना प्रोटीन उनको चाहिए उतना प्रोटीन वो खाते ही नहीं है। 10 में से 9 लोगों को तो पता भी नहीं है कि हमें रोज कितना प्रोटीन खाना चाहिए या हमारे लिए कितना रिक्वायरमेंट है। और इस दोनों डेटा को अगर आप मर्ज करो तो आपको ये लगेगा कि यार क्या हो क्या रहा है। हाँ, हम खा भी नहीं रहे और खाना तो दूर की बात है, हमें पता भी नहीं है। और जो 1% जो खा रहे हैं वो बस बाय फ्लूक खा रहे हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे, अगर कुछ और डेटा है, इन डेटा को समझने की मोटी मोटी बात यही है कि सब डेफिशिएंट है। तो इस स्लाइड में मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं, अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। डेटा पे जाके मतलब नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। अगर 10 में से 8 लोग उतना प्रोटीन नहीं खा रहे हैं जितना खाना चाहिए, 10 में से 9 को अगर पता ही नहीं है कितना खाना चाहिए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? यही तो डेटा आएगा कि 73% लोग डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट है, 93% को पता ही नहीं कि खाना कितना चाहिए प्रोटीन। 84% जो सिर्फ वेजिटेरियन जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं उसमें से 84% लोगों का तो कभी प्रोटीन पूरा पड़ता ही नहीं है उनको, वो खा भी नहीं पाते हैं। मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे तकलीफ होती है अपना प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए, मुझे पता है मैं कितने स्ट्रगल करता हूँ। बट थैंक गॉड हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो पूरा हो जाता है। ओके, और जो नॉन वेज खाने वाले हैं वो भी 65% लोग डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि लोग रोज नॉन वेज नहीं खाते हैं और प्रोटीन रोज चाहिए होता है। 97 प्रेग्नेंट वुमेन को उनका पता ही नहीं कि उनको कितना प्रोटीन खाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे प्रोटीन की नीड बढ़ जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो मिथ्स हैं, झूठ हैं, लेकिन फैले हुए हैं इस तरह से कि जैसे वो सच है। जैसे लोगों को लगता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर प्रोटीन है और बहुत ज़्यादा है। अगर उनको पूछा आप प्रोटीन खाते हो, बोलते हैं हाँ। हम पूछते कहाँ खाते हो, किस चीज़ से खाते हो, किस चीज़ से आपको प्रोटीन मिलता है? लोग बोलते हैं फ्रूट और वेजिटेबल से। कुछ फ्रूट्स बोलते हैं, कुछ सिर्फ वेजिटेबल बोलते हैं, कुछ दोनों बोलते हैं। ओके, और
70% जो लेडीज़ हैं, जो प्रेग्नेंट या फिर जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, डिलीवरी कर चुकी हैं, वो ये चीज़ को मानती हैं कि फ्रूट और वेजिटेबल खा लेंगे उसमें हमको प्रोटीन मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं। कई लोग ये सोचते हैं कि जो हरी सब्जियां हम खाते हैं पत्ते वाली, उसके अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। और मालूम है, ये अर्बन इंडिया में ये सिचुएशन है। अर्बन इंडिया मतलब शहरों में पढ़े लिखे लोग इसको मानते हैं। 73% लोग सोचते हैं कि ये बात सही है। आप इमेजिन करिए, सो कॉल्ड पढ़े लिखे अपनी फील्ड पे, इसमें नहीं, ओके। और 20% लोग तो ये सोचते हैं कि प्रोटीन तो शरीर के लिए बहुत खराब है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा हिंदुस्तान में तो लोग खा ही नहीं रहे, ज़्यादा कहाँ से होगा। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, वी आर मेड ऑफ प्रोटीन, हम प्रोटीन से बने हैं। हमारा हर सेल, हमारा हर ईंट, हमारा छोटे से छोटा हिस्सा प्रोटीन से बना हुआ है। हमारे शरीर में हर चीज़ प्रोटीन से बनती है। प्रोटीन के बगैर कोई चीज़ बन ही नहीं सकती। प्रोटीन के बगैर कोई चीज़ रिपेयर हो ही नहीं सकती। प्रोटीन के बगैर आपको एनर्जी मिल ही नहीं सकती। आप जो एक एंड ऑफ दिस सेशन आपको अंदाजा आ जाएगा कि प्रोटीन क्यों, अब बात आ जाता है इसके ऊपर कि प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा जाता है। क्योंकि जैसे कि सबसे पहले मैंने कहा, सबसे छोटी चीज ईंट है, वही सेल से बन बन के आपका शरीर बनता है, ओके। प्रोटीन जो शब्द आया है, ये ग्रीक शब्द है जिसको प्रोटेओस कहते हैं। प्रोटेओस का मतलब होता है सबसे पहले। अब आप समझ जाओ इसको नाम भी क्यों दिया गया सबसे पहले, है ना, क्योंकि ये जीवन में सबसे जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए। प्रोटीन जो बनता है ये 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड से बनता है। अब इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर बाद में फिर ऐसा लगेगा कि जैसे हम अभी डॉक्टर की पढ़ाई करने चालू कर दिए हैं, ओके। तो कुछ चीज़ें होती हैं अमीनो एसिड जो हमारा कुछ शरीर बनाता है, कुछ हमें बाहर से खाना होता है, लेकिन टोटल अराउंड 20 होते हैं जिससे कंप्लीट प्रोटीन बनता है, ओके। ये हमारे बॉडी में 15 to 16% हमारे पूरे बॉडी के वजन का 15 से 16% हिस्सा प्रोटीन से बनता है। बाद में वाटर भी आपने सुना होगा जो अप्रोक्सीमेटली 70% है, फैट भी है, बोन भी है, ओके। 73 अर्बन रिच पीपल, शहर में रहने वाले 73% अमीर लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है। उनके पास पैसे भी हैं, खा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं खा पाते हो क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कहाँ से मिलता है और कितना खाना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमें कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। अब इसमें आ जाए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं जिससे मिल के प्रोटीन बनता है। अब इसको दो हिस्से में बांट दिया जाता है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, जरूरी और जो जरूरी नहीं है ना। जरूरी नहीं है का मतलब ये नहीं कि हमें नहीं चाहिए, वो हमें चाहिए। नॉन एसेंशियल, जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये कि वो हमें चाहिए लेकिन खाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। हम जो भी चीज़ खाते हैं उनसे वो बना लेती है, इसके लिए वो ज़रूरी खाना नहीं है। लेकिन एसेंशियल जो है, जो ग्रीन कलर में यहाँ लिखा हुआ है, ये टोटल नॉट ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिसे हमें खाना पड़ेगा। अगर हमने नहीं खाया तो हमारी बॉडी बना नहीं सकती, और जब हमारी बॉडी बना नहीं सकती तो प्रोटीन जो बनेगा आपके शरीर में वो इनकम्प्लीट बनेगा, मतलब जो ईंट बनेगी मजबूत नहीं रहेगी, ओके। तो एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल मतलब वो जो हमारे शरीर को जरूरत तो है लेकिन खाने की जरूरत नहीं। एसेंशियल वो जो हमारे शरीर को जरूरत भी है और हमें बाहर से खाना पड़ेगा क्योंकि शरीर बनाता नहीं है उसको खुद, ओके। तो ये दो तरह के अमीनो एसिड्स हैं। अब ये स्लाइड आप समझ लीजिए, इसमें थोड़ा टाइम दीजिएगा, इसमें आपको समझ में आएगा कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, इसका काम क्या है। ये हमारे शरीर में मसल बिल्ड करता है, मांसपेशियां बनाता है। देखिए हमारे शरीर में 3-4 चीजें हैं मोटा मोटा, बोन है, मांसपेशियां हैं, फैट है और मसल है, मांसपेशियां हैं, है ना। बोन और मांसपेशियां ये मजबूत होनी बहुत जरूरी है, ज़्यादा क्वांटिटी में होनी जरूरी है। फैट हमारे शरीर में ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि फैट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल है। शरीर के कई अंग ऐसे हैं जिसमें बनने के लिए फैट की ज़रूरत भी पड़ती है और ज़्यादा भी पड़ती है,
ओके, कुछ ऐसे हिस्से हैं, लेकिन क्योंकि आज हम प्रोटीन के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ प्रोटीन के ऊपर बात करेंगे। तो प्रोटीन मसल बनाने के काम आता है। ओके, प्रोटीन आपका इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। वो एंजाइम भी इसी से बनते हैं, प्रोटीन से। और क्योंकि आपके एंजाइम अच्छे बनेंगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा वो एकदम सस्टेनेबल रहेगा, सही रहेगा। ओके, शरीर के अंदर जो भी आपने खाना खाया, तो जैसे मैं बोला कि ईट सेल, वहां तक हर न्यूट्रिएंट को पहुंचना चाहिए। जो भी आपने खाया उसके पोषक तत्वों को वहां तक पहुंचना जरूरी है। और वो पहुंचाने का काम जो करता है वो करता है खून। और खून के अंदर एक चीज होती है, जैसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन दो शब्द से बनता है, हीमो और ग्लोबिन। हीमो है आयरन, ग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है। ओके, तो हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन से बनता है। हीमोग्लोबिन कितना इंपॉर्टेंट है मालूम आपको? जब भी अपना ब्लड रिपोर्ट आप निकाल के डॉक्टर के पास लेके जाओ, सबसे पहला वो आपका हीमोग्लोबिन चेक करता है। क्यों? अगर आपका हीमोग्लोबिन सही नहीं रहा तो आपके शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। और अगर आपको, मेरे ख्याल से कई लोगों को अगर 1 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिला वो वहाँ पर बेहोश हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं मिला तो शायद मर भी जाए। ओके, तो इतना ज़रूरी है प्रोटीन। आपका जो हीमोग्लोबिन है, जो बोलते हैं ना हमारे बदन में खून की कमी हो गई है, उसके लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत है। आयरन की गोली तो खाते हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है। ये आपका डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए भी काम आता है, सही तरीके से बनाने के लिए। ओके, ये आपके खाने को तोड़ने के लिए, जैसे कि हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना तोड़ना भी होता है। तो खाना तोड़ने का पाचन क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रेक डाउन खाने को ब्रेक डाउन करना। तो ये वो भी काम करता है। ओके, क्यों? बहुत सारे आपको एंजाइम जो बनते हैं इससे। ये आपके बॉडी के टिश्यू को ग्रो करता है और रिपेयर करता है ना। सी टिश्यू कहाँ से बनता है? टिश्यू बनता है जब बहुत सारे सेल मिलते हैं ना, तो उससे बनता है एक टिश्यू। जैसे बहुत सारे पन्ने मिलेंगे तो बनेगा एक बुक। ओके, उसी तरह से बहुत सारे ईंट मिलेंगे तो बनेगी एक दीवार। उसी तरह से जब बहुत सारे सेल मिलेंगे तो बनता है टिश्यू। ऑब्वियसली जब आपका सेल ग्रो होंगे तो आपका टिश्यू ग्रो होगा। जो खराब भी होते हैं तो रिपेयर भी इससे ही होगा। जैसे मैंने पहले कहा, ये रिपेयर करने के भी काम आता है। ये आपके हार्मोन को बनाने के भी काम आता है। और बहुत सारे ब्रेन केमिकल, वो केमिकल जिससे आप खुश होते हो, जिससे आप दुखी होते हो, जिससे आप उदास होते हो, है ना, ये सारे केमिकल जिससे आप खुश होते हो, है ना, आनंद की अनुभूति होती है जिससे, वैसे बहुत सारे हार्मोन भी बनाने के काम करता है, में बनाने में जरूरत होती है इसकी। ये एनर्जी का भी सोर्स है। आपके बॉडी को एनर्जी भी प्रोटीन से मिलता है। आप देखिए, अगर 1 ग्राम प्रोटीन आप खाते हैं तो आपको तकरीबन 4 कैलोरी मिलता है। और मजे की बात यह है, क्योंकि प्रोटीन बहुत देर तक आपके पेट पे रहता है, ये हम आगे बताएंगे अभी। इसका डाइजेशन स्लो होता है तो आपको एनर्जी लंबे टाइम तक मिलती है। क्योंकि हमने कहा कि सबसे छोटा हिस्सा सेल है, वो प्रोटीन से बनता है। और सेल हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं। आपके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर चीज में प्रोटीन है। तो आपको अच्छा प्रोटीन, अच्छा आपका हेल्थ रखने के लिए, अच्छे बाल, अच्छे नेल, अच्छे स्किन रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पर आपको पता चल ही जाना चाहिए कि मुझे प्रोटीन जरूरी क्यों है। और इसके बाद अगर आपको इतना पता चल जाए कितना खाना चाहिए, मेरे ख्याल से बाकी आपको पता नहीं भी चले तो चले। ओके, और कौन सा खाना चाहिए, है ना। अब इसमें आते हैं कि हमें कितना खाना चाहिए। ये डिपेंड करता है बेसिकली दो चीज़ के ऊपर, एक इंडिविजुअल के ऊपर और दूसरा होता है प्रोटीन की क्वालिटी के ऊपर। इंडिविजुअल के ऊपर कैसे? कि उसका सेक्स क्या है, उसका एज क्या है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। मतलब ये, जैसे कि आप मेल और फीमेल को ले लें। मेल, आप बाय डिफॉल्ट उनका बॉडी ज़्यादा मस्कुलर होता है बनिस्बत लेडीज़ के। तो ऑब्वियसली जब उनका ज़्यादा मस्कुलर बॉडी है तो उनको ज़्यादा प्रोटीन लगेगा। एज, बच्चों की एज जैसे कि ग्रोइंग एज होती है, उस पर अलग प्रोटीन लगता है। एडल्ट के लिए अलग लगता है, बूढ़ों के लिए अलग लगता है। फिर फिजिकल एक्टिविटी, कौन एक्सरसाइज कर रहा है, कौन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कौन बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, उसके बेसिस पे भी डिसाइड होता है कितना प्रोटीन उन्होंने खाना है। हेल्थ स्टेटस, जैसे लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उनके हेल्थ स्टेटस से उनको अलग लगेगा, प्रोटीन ज़्यादा लगेगा। ओके,
अगर कोई आप उसको इस तरह से देखिए, किसी का ऑपरेशन हुआ है ना, मतलब बॉडी कटा है, अभी उसको रिपेयर होना है, बनना है, आप क्या करोगे? आपके दीवार में क्रैक है तो सीमेंट का प्लास्टर मारते हो, वही चीज ये करता है। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे पता चलता है कि आदमी, किसी इंसान को कितना प्रोटीन खाना है। और दूसरा फर्क पड़ता है प्रोटीन की क्वालिटी से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। एग्जांपल ले लीजिए, आपको बताऊं मैं, कोई अगर ऐसा प्रोटीन है जिसको आपने 10 ग्राम खाया और 10 ग्राम आपके शरीर पे लग गया, इतना अच्छा क्वालिटी का है, और दूसरा एक ऐसा प्रोटीन है कि आपने 10 ग्राम खाया लेकिन शरीर में सिर्फ 5 ग्राम ही लगा, बाकी 5 ग्राम वेस्ट हो गया, शरीर से बाहर निकल गया। आप दोनों सिचुएशन पे 10 ग्राम ही खा रहे हो, लेकिन आपके शरीर में लग रहा है अलग अलग, एक में 10 ग्राम लग रहा है, एक में 5 ग्राम लग रहा है। तो जो आप, जहां पर आपको 5 ग्राम लग रहा है, वहां पर आपको एक्चुअली जितना आपके शरीर को प्रोटीन चाहिए उसका डबल खाना पड़े, 2 गुना खाना पड़े, क्योंकि आधा ही लग रहा है। तो प्रोटीन की क्वालिटी के ऊपर भी है, और ये सब क्वालिटी किससे मालूम पड़ती है कि उसके अंदर सारे अमीनो एसिड का कंपोजिशन बराबर है क्या नहीं। जो 20 अमीनो एसिड थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, एसेंशियल अमीनो एसिड मिला के, वो टोटल 20 अमीनो एसिड का कंपोजिशन अगर सही है तो सही क्वालिटी का प्रोटीन होता है। प्रोटीन का जो क्वालिटी है उसके डाइजेस्टिबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि किस तरह से वो डाइजेस्ट हो रहा है आपके बॉडी पे, मतलब अब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी के अंदर। उसको चेक करते हैं पीडीकास स्कोर से। पीडीकास स्कोर का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। ओके, फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, समय समय से बार बार आओगे हो जाएगा, लेकिन पीडीकास शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए। ये स्कोर अगर 1 है तो आपके बॉडी के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि 1 का मतलब ये कि जितना आपने खाया उतना पूरा लग गया आपके शरीर के अंदर। अब देखिए किसको कितना प्रोटीन लगता है, जैसे कि हमने बताया कि अलग अलग है ना, अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से है। एक अगर नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल एडल्ट है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करता, मतलब ज़्यादा हिलना डुलना काम नहीं है, बैठ के ही काम है उसका, वैसी लाइफ उनकी चल रही है, तो बॉडी का 0.8 ग्राम उनको प्रोटीन लगता है। मतलब ये कि अगर 60 किलो वजन है तो 48 ग्राम प्रोटीन लगेगा, 80 ग्राम वजन, 80 किलो वजन है तो 65 ग्राम के आसपास प्रोटीन लगेगा। वो है जो सिर्फ अपने थोड़ा हल्का सा फिटनेस के लिए अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उनके लिए 1.1 से 1.4 ग्राम ऑफ बॉडी वेट लगेगा। मतलब ये कि अगर 60 ग्राम वजन है तो 66 ग्राम लगेगा, 80 ग्राम वजन है तो 88 ग्राम प्रोटीन पर डे लगेगा। ओके, आपको सब सोचने में लग रहा होगा ना कि यार हम खाना ही दिन भर में साला 2-3 किलो खा लेते हैं, है ना, 2-3 किलो खाना हम खा लेते हैं तो इसमें क्या चीज़ है, ये तो कुछ भी नहीं हुआ इतना सा। बट नहीं, प्रोटीन कंटेंट कितना है, वो भी प्योर प्रोटीन, डाइजेस्टेबल, पीडीकास स्कोर 1 वाला। जब आप वो समझने जाओगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं खा रहे। ओके, इंड्योरेंस मतलब वो कि जहाँ पर लोग लंबी देर तक एक्सरसाइज कर लेते हैं, ओके, रेगुलर बेसिस पे, तो उनको 1.2 से 1.4 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन लगता है। और जो बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, उनके लिए 1.2 से 1.6 ग्राम प्रोटीन लगता है। तो ये आपको बताने का मतलब ये है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। अब ये समझना जरूरी पड़ेगा कि सुबह सुबह क्या हमें प्रोटीन खाना चाहिए। खाना चाहिए तो क्यों खाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए, अगर आप यहाँ पर आ रहे होंगे बार बार तो आपको इतना पता होगा कि रात भर में हमारी बॉडी रिपेयर का काम करती है, अंदर जितने भी रिपेयर वाले काम होते हैं वो करती है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि सुबह जब आप उठते हो तो आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन का बैलेंस नेगेटिव रहता है। मतलब ये कि बिल्कुल नहीं रहता, वो जल्दी से जल्दी उसे चाहिए हो। सुबह सुबह अगर आपने प्रोटीन ज़्यादा खा लिया तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को 15 से 30% बढ़ा देती है ना। मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? मेटाबॉलिक रेट इस तरह से समझिए, जो भी आप खाना खाते हो उसको एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, जो आपको ताकत में जो कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस है, उस प्रोसेस की बात करते हैं। तो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। तो मतलब ये है कि आपने सुबह सुबह खाना खाया है, आपका एनर्जी जल्दी जल्दी आपको दे, क्योंकि देखो आप ध्यान दें कि सुबह उठने के बाद आप ज़्यादा काम करते हैं, दोपहर तक या 2 बजे तक, है कि नहीं? तो उस वक्त आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो एनर्जी बढ़ाता है। प्रोटीन आपको सस्टेन एनर्जी देता है। सस्टेन एनर्जी देने का मतलब एनर्जी रिलीज करता है, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि आपको जैसे आपने प्रोटीन खाया फट से उसने आपको एनर्जी दी और थोड़ी देर में फिर एनर्जी निकाल दी, ऐसा नहीं है। ये आपको आस्ते 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 एनर्जी देगा और फिर आस्ते 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 नीचे आएगा। मतलब काफ़ी देर तक आपको एनर्जी मिलती रहती है प्रोटीन खाने से। और इसका हायर थर्मिक इफेक्ट है ना। थर्मिक इफेक्ट बेसिकली क्या है
कि इसी को पचाने के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीन की कितनी एनर्जी लगती है वो है। तो इसका हाई है, तो हाई होने की वजह से क्या होता है, कैलोरी का कंजम्पशन बढ़ जाता है। कैलोरी का कंजम्पशन बढ़ता है तो आपको मोटापे के लिए थोड़ा मोटापा नहीं होने के लिए मदद करता है, इतना आप समझ जाइए। अब ये है कि ये देखा गया कि सुबह सुबह प्रोटीन खाने से क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला कुछ 2 ग्रुप के ऊपर एक स्टडी की गई कि कुछ लोगों को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ज़्यादा प्रोटीन दिया गया और कुछ एक ग्रुप को रात को डिनर में ज़्यादा प्रोटीन दिया गया। ये पाया गया कि सुबह सुबह प्रोटीन देने वालों का मसल का वॉल्यूम बढ़ा और ग्रिप स्ट्रेंथ भी बढ़ी, जिसके वजह से इनका मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक हेल्थ बढ़ा है, इनका फिटनेस और फंक्शनलिटी इंप्रूव हुई है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ है। रात में ज़्यादा नहीं खाना है प्रोटीन, सुबह ज़्यादा खाना है। हालांकि इसको डिवाइड करना होता है, ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन आपको सुबह खाना है। ओके, एक फार्मूला पे हम चलते हैं, आप भी बना सकते हो। जिसने आपको यहाँ बुलाया है, जो आपके हेल्थ कोच हैं, वो आपको बता सकते हैं कि किस तरह से आपको खाना है, किस तरह से आपको डिवाइड करना है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड कर सकता है। ओके, दूसरा, सुबह सुबह खाने से क्या होता है, सुबह सुबह खाने से ये आपको वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। कैसे? ये आपको ना सैटिस्फैक्शन देता है। सैटिस्फैक्शन कैसा? सैटिस्फैक्शन का मतलब ये हो गया कि आपने खाना खाया तो कितनी देर के बाद फिर आपको भूख लगेगी, है ना। तो प्रोटीन की वजह से आपको भूख बहुत ज़्यादा देर से लगती है, खास करके प्लांट प्रोटीन। और उसमें भी अगर आपने प्लांट प्रोटीन के साथ में अगर आपने फाइबर ऐड कर दिया तो ये आपको और ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देगा। ओके, और जैसे कि आपको पता है कि ये एनर्जी को बर्न करने के लिए भी, इस खुद की एनर्जी को भी बर्न करने के लिए उसको एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो आपकी एनर्जी जो आपको बॉडी को मिल रही है, जो कैलोरी मिल रहा है, वैसे कैलोरी उधर कम हो जाती है आपकी। तो जिसके वजह से आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी, जो आपने एनर्जी पैदा की है खाने से वो पचाने में ही चली जाएगी। तो आपका वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत मदद करता है, क्योंकि आपका कैलोरी इननेसेसरी बढ़ता नहीं है बॉडी के अंदर, अनयूज्ड कैलोरी, क्योंकि अनयूज्ड कैलोरी अगर बॉडी के अंदर बढ़ा तो वही फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी की वजह से आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल अच्छा रहेगा, इंसुलिन लेवल सही रहेगा, आपका पेट काफ़ी देर के बाद अगर खाली रहा तो आप एकदम खुश रहोगे, आपका पेट एकदम अच्छा रहेगा। आपका पेट अच्छा रहेगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपकी थिंकिंग अच्छी रहेगी, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपका मूड अच्छा होगा, आप तेज तर्रार होंगे। अलर्टनेस मतलब तेज तर्रार होना, और आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या सिर्फ प्रोटीन को सुबह ही खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, सुबह आपको ज़्यादा खाना चाहिए। बोलने का मतलब ये है, जिस तरह से मैं फॉलो करता हूँ, मुझे तकरीबन 75 से 80 ग्राम प्रोटीन खाना होता है, जिसमें से 35 से 32 ग्राम मैं सुबह ही खा लेता हूँ, बिफोर 10 ओ क्लॉक। अराउंड 30 से 32 ग्राम प्रोटीन अलग अलग सोर्सेज से, ये आपको पता चलेगा कहाँ से प्रोटीन मिलता है आपके बॉडी को, वहाँ से मिलता है। उसके बाद आता है आपका दोपहर खाना, जिसमें अराउंड 25 से 30 रहता है, और बाकी बचा खुचा शाम के टाइम। तो इस तरह से मैं अपना ब्रेक करता हूँ। तो आप भी अपने हेल्थ कोच के साथ मिलकर बैठकर अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप करेंगे तो आपका मसल मास बढ़ेगा। आपका ब्रेकफास्ट अच्छा रहा तो उसके बहुत सारे आपको फ़ायदे अलग अलग हैं, ये आप आते रहिए, आपको पता चलते जाएगा। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि इसको डिवाइड करना है, सुबह सबसे ज़्यादा, दोपहर को उससे थोड़ा कम, और रात में और कम। इस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटीन आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो आप ये 4 चीज़ों को ध्यान में रख लें। प्रोटीन कब खाना है, किस क्वालिटी का खाना है, दिन भर में कितना खाना है, और किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। इन चारों चीज़ों के ऊपर अभी हमने बात करी कि प्रोटीन की टाइमिंग कब होनी चाहिए, कब खाना चाहिए, दिन भर में कैसे खाना चाहिए, क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, और टोटल प्रोटीन कितना खाना चाहिए। ये चारों चीज़ को मिलाकर फिर हम उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमें कितना प्रोटीन और कब कब खाना चाहिए। कहाँ कहाँ से हमको प्रोटीन मिलता है ये देखिए आप, दो जगह से हमको मिलता है। एक प्लांट से मिलता है और एक मिलता है एनिमल से। एनिमल मतलब नॉन वेज सोर्स जिसको हम कह सकते हैं। प्लांट आपको सीरियल से मिल सकता है, ओट्स में मिल सकता है, टोफू में मिल सकता है, ब्राउन राइस में मिल सकता है, किनोआ में मिलता है, लेंटिन में मिलता है, काजू नट्स में मिल जाता है आपको।
कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं जिसमें आपको मिल जाता है, ओके, लेकिन बहुत कम मात्रा में है उसमें। तो बोलने का मतलब है इतने सारे सोर्स हैं। कई लोगों को लगता है कि प्रोटीन के सोर्स वेज में नहीं है, लेकिन वेज में बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन हम उनको खाते नहीं है उतना ज़्यादा। प्रॉब्लम उधर है, ओके। और दूसरा एक प्रॉब्लम है कि ये प्रोटीन के जो सोर्स होते हैं बहुत कम ऐसे हैं जिसके अंदर आपको सारे एमिनो एसिड मिल जाए। तो एक अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में बात कर सकते हैं। एनिमल प्रोटीन आपको अंडे में है, चिकन में है, फिश में है, मीट में है, दूध में है, दूध से बनी हुई चीज़ों के अंदर है। इन सब चीज़ों में आपको प्रोटीन मिलता है। अब आपको एक और चीज़ थोड़ी सी बात बता दें हम, ब्लू जोन। कईयों ने आप में से ब्लू जोन के बारे में सुना होगा, कईयों ने आप में से ब्लू जोन के बारे में नहीं सुना होगा, ओके। तो ब्लू जोन बेसिकली क्या है? ब्लू जोन बेसिकली दुनिया की 5 ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग नॉर्मल से ज़्यादा जीते हैं, हेल्दी। मतलब ये कि कई लोग वहां पर 100 से ज़्यादा साल जीते हैं। मतलब जो दुनिया का रेशो उससे काफ़ी अच्छा रेशो वहाँ पर है कि वहाँ पर लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं और हेल्दी जीते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये कौन कौन सी जगह है? अगर आपके सामने आपको दिख रहा होगा तो यूनाइटेड स्टेट में है लोमा लिंडा करके जगह, कोस्टा रिका में निकोया करके जगह है, इटली में सार्डिनिया करके जगह है, ग्रीस में आइकारिया करके जगह है, जापान में ओकिनावा करके जगह है। तो ये 5 जगहें ऐसी हैं जिसको ब्लू जोन कहा जाता है, जहाँ पर लोगों की लंबी उम्र होती है और हेल्दी रहते हैं। ऐसा नहीं कि बीमारी में जी रहे हैं, नहीं, अच्छे जी रहे हैं। तो जब उनके ऊपर स्टडी की गई तो जरा पता चला कि उनकी 4 चीज़ें हैं उनको जो दुनिया से उनको अलग करती हैं। एक, वो ज़्यादा करके प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत कम। प्लांट बेस्ड ज़्यादा खाते हैं और खाना अगर उनको ऐसा है कि अगर 80% जितना उनकी कैपेसिटी होती है उसका 80% ही खाते हैं ना, इस तरह से फूड को अपना मैनेज करते हैं। वो नेचुरल मूवमेंट करते हैं, वो ज़्यादा करके एक्सरसाइज वगैरह ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल मूवमेंट कैसा हो, जैसा गार्डनिंग हो गया, है ना, जैसे कोई काम कहीं जाना है तो चल के चले गए, है ना, घर के काम अपने हाथों से कर लिया, अपने हाथ पाँव लगा के कर लिया, अपनी मेहनत से कर लिया। उनकी थॉट हमेशा पॉजिटिव रहती है, जिसकी वजह से शायद उनका स्ट्रेस लेवल कम होता होगा, ओके। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि वो सोशली कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। आजकल की दुनिया के जैसे नहीं, खास करके अर्बन जगह में, कि एक फ्लैट वाले को पता नहीं कि उसी के फ्लोर में बाकी 3 लोग और कौन है, या बाकी 4 लोग और कौन है, क्या कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं उनके। ऐसा नहीं, वहाँ एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं। उनके अगर खाने की गाइडलाइंस के बारे में देखा जाएगा तो वो ज़्यादा करके रोज प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं। वो नट्स ज़्यादा खाएंगे, वेज ज़्यादा खाएंगे, बीन्स ज़्यादा खाएंगे, होल 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 सीरियल्स खाएंगे ज़्यादा करके, है ना। उनके लाइफ में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ओके। हफ्ते में कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही एग खाएंगे, शुगर वाली चीज़ें कम खाएंगे, फिश भी बहुत कम खाएंगे, 2 या 3 बार ही हफ्ते में खाएंगे, रोज नहीं, ओके। और महीने में 1 आध बार दूध या दूध के प्रोडक्ट या फिर मीट वगैरह खा लिए। बोलने का मतलब मेरा ये है कि देखिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो प्लांट बेस्ड के ऊपर ध्यान रखते हैं, नॉनवेज के ऊपर कम ध्यान रखते हैं, शुगर के ऊपर कम रखते हैं, होल ग्रेन्स खाते हैं, रिफाइंड ग्रेन नहीं खाते हैं, रिफाइंड ग्रेन का प्रोसेस्ड आइटम नहीं खाते हैं, और जितना उन्हें खाना होता है उससे कम खाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 80%, जो मैंने पढ़ा है कि अराउंड 80% ही अगर उनकी कैपेसिटी का 80% खाते हैं खाना। तो ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रखते हैं। अब आ जाते हैं कि सोया प्रोटीन वेट मैनेजमेंट में किस तरह से काम करता है। देख लीजिए, सटाइटी जैसे कि मैंने कहा, बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती। सोया प्रोटीन, खास करके वेज प्लांट बेस्ड प्रोटीन, आपके शरीर में तो आपने पेट में तो डाल लिया, लेकिन पेट से आपके शरीर के अंदर बहुत आहिस्ते 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 जाता है। इसका मतलब बहुत देर के बाद आपका पेट खाली होता है या पूरा सिस्टम खाली होता है, फिर आपको भूख लगती है। मतलब बहुत जल्दी भूख नहीं लगती, जिसके वजह से आपका जो भूख है वो रेगुलेट अच्छी तरह से रहता है। इसी को पचाने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है कि नहीं। तो बहुत सारा कैलोरी जो आपने खाया, जो कैलोरी आपने प्रोटीन से खाया है, वही पचाने में ज़्यादा करके यूज़ कर लेता है, ओके। इससे लीन बॉडी मास मिलता है, क्योंकि वेज में अंदर आपको वेज प्रोटीन के अंदर आपको फैट नहीं मिलता।
ओके, क्योंकि अगर फैट नहीं है तो आपको लीन बॉडी मास मिलेगा। ये फैट इनहेंस फैट ऑक्सीडेशन होता है इससे। ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है इससे। ग्लाइसेमिक बेसिकली ये आपका ब्लड शुगर से रिलेटेड है, वो कंट्रोल करता है। और कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर वेज, तो आपको कोई भी वेज प्लांट के अंदर, कोई भी प्लांट बेस्ड डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। आपको यहाँ पर मैं खाली एक टिप दे दूं कि अगर आपने कहीं किसी बॉटल पे देख लिया, तेल की बॉटल है, तेल के पैकेट पे जो लिखा हुआ सोयाबीन ऑयल विथ जीरो कोलेस्ट्रॉल, समझ लीजिएगा वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि प्लांट कोलेस्ट्रॉल पैदा नहीं करते, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। हम इंसान या जानवर ही कोलेस्ट्रॉल पैदा करते हैं। तो कोई भी वेज सोर्स का ऑयल हो और उसमें अगर आपको लिखे जीरो कोलेस्ट्रॉल, समझ लो आपको बेवकूफ़ बना जाए, सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। ओके, सोया प्रोटीन के बेनिफिट दो हैं, एक है एनाबॉलिक और दूसरा है बियॉन्ड एनाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब जब शरीर के अंदर कुछ बनाता है ना, कोई चीज़, जब कोई चीज़ बनने को बोलते हैं एनाबॉलिक, और कुछ चीज़ को तोड़ने को बोलते हैं कैटाबॉलिक। यहाँ पर हम कैटाबॉलिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एनाबॉलिक के बारे में पढ़ेंगे। और जो सोया प्रोटीन आप खाते हो, सोया प्रोटीन एक एनाबॉलिक इफेक्ट है और दूसरा है बियॉन्ड एनाबॉलिक, मतलब कुछ बनाता तो नहीं है लेकिन हेल्प करता है किसी और काम के लिए। तो एनाबॉलिक इफेक्ट क्या है कि कई लोगों को ये लगता है कि सिर्फ वे प्रोटीन से ही आपका मसल बनता है। जी नहीं, आपको इससे भी सोया प्रोटीन से भी मसल बनता है। मसल प्रोटीन, मसल ब्रेकडाउन होता है, फिर हमारे क्या बोलते हैं, जो खून है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है नसों से, वो फिर मसल के अंदर अमीनो एसिड अंदर भेजता है, जहाँ से मसल सिंथेसिस होता है और फिर मसल बनता है। ओके, ये आपको इम्प्रूव करता है लीन बॉडी मास बनाने के लिए, जिससे वजह से आपके बॉडी को स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है, एंडोरेंस अच्छा मिलता है, और एक्सर्शन रिड्यूस करता है। एक्सर्शन मतलब जो थकान वकान जो आती है उसको कम करने में मदद करता है, और एक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। यह है एनाबॉलिक इफेक्ट, बनाना, आपके बॉडी का मसल, बॉडी में मसल बनाया। बियॉन्ड एनाबॉलिक, जहाँ पर वो बना तो नहीं रहा है लेकिन मदद कर रहा है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए मदद करता है, आपके बोन हेल्थ के लिए मदद करता है, वेट मैनेजमेंट के लिए मदद करता है, और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए मदद करता है। बियॉन्ड एनाबॉलिक इफेक्ट में अगर आप देखेंगे कि किस तरह से मदद करता है, हार्ट हेल्थ में आपके ब्लड लिपिड्स को रिड्यूस करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस करेगा, एलडीएल कम करेगा, वीएलडीएल कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स आपका कम करेगा। मेटाबॉलिक हेल्थ में आपको फुलनेस देता है, मतलब पेट भरा हुआ ऐसा आपको बहुत देर तक लगता है, आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत देर तक रहती है, आपकी फैट बर्न होती है, हार्मोनल बैलेंस होता है इसके वजह से। बोन हेल्थ इस तरह से इंप्रूव होता है कि आपके बोन मिनरल डेंसिटी इंप्रूव करता है। बोन मिनरल डेंसिटी अगर इंप्रूव होगी तो आपके बोन मजबूत होंगे, अंदर से खोखले नहीं होंगे, है ना। किसी बार देखिएगा आप किसी गूगल में कभी पिक्चर पे, खोखली हड्डियाँ और भरी हुई हड्डियाँ। ओके, वेट मैनेजमेंट किस तरह से मदद करता है, क्योंकि आपके सैटिस्फैक्शन बढ़ाता है। सैटिस्फैक्शन बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि आपको भूख बहुत देर तक नहीं लगना। ओके, आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करता है, आपके ब्लड लिपिड को मैनेज करता है, फैट बर्न अच्छे से करता है, तो जिसकी वजह से आपका कैलोरी वहीं पर यूज़ होती है, और जिसकी वजह से आपको लीन बॉडी मास मिलता है, क्योंकि इसके अंदर फैट तो होता नहीं है। ओके, तो ये सोया प्रोटीन के बेनिफिट है। सोया प्रोटीन के कुछ ना मिथ्स हैं। मिथ्स मतलब अगेन वही बात कि जो सच नहीं है लेकिन प्रचलित इस तरह से जैसे कि हाँ बहुत सही है। एक उसमें से ये है कि सोया आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं करता। ओके, कई लोग कहते हैं कि कुछ हार्मोन्स जेंट्स में लेडीज़ के हार्मोन बढ़ने लग जाते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसका आपको सिंपल एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको इतना बता दूं कि चाइना इतना सोया खाता है जितना कोई नहीं खाता, और चाइना की पॉपुलेशन हिंदुस्तान से कई ज़्यादा थी अभी कुछ साल पहले तक, और सोया वो आज से नहीं खा रहे हैं, वो पूरे सदियों से खाते आ रहे हैं। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोया अर्ली पुबर्टी मतलब मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है इसकी वजह से, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। ऐसा कोई रिसर्च नहीं है जो इसको प्रूव कर सके। सोया आपके थायराइड के लिए खराब है। अगर आपके थायराइड ग्लैंड सही है तो उसके लिए बिल्कुल खराब नहीं है, आप बेझिझक खा सकते हो। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड में कुछ कंप्लीट प्रॉब्लम है तो शायद आप डॉक्टर का सजेशन ले सकते हो। ओके, नाउ सोया एलर्जीज कॉमन है? बिल्कुल नहीं।
जिस तरह से लैक्टोस एलर्जी है, तुम्हारा ग्लूटेन एलर्जी है, उसी तरह से सोया एलर्जी कॉमन नहीं है। कुछ कुछ लोगों में हो सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट सो कॉमन। इनफैक्ट मेरे को आज तक, मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे आज तक एक भी कोई नहीं मिला, 10 साल से इस बिजनेस के अंदर हूँ, इस काम के अंदर हूँ, मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो सोया की एलर्जी होगी। किसी किसी को हो सकती है, वो अलग बात है, वो चेक कर सकते हैं उसके बारे में। प्लांट प्रोटीन के फ़ायदे देखिए आप, ये फाइबर में हाई होते हैं, क्योंकि प्लांट में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और उसके अलावा भी कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि मैंने कहा, प्लांट के अंदर नहीं होता तो प्लांट प्रोटीन के अंदर भी नहीं होगा। लो इन सैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन सैचुरेटेड फैट बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इसमें कोई एनिमल हार्मोन्स नहीं होते हैं। क्यों? एनिमल हार्मोन होंगे तो हम भी एनिमल हैं, शायद कुछ उल्टा सुल्टा काम कर सके हमारे बॉडी के अंदर, हमें पता नहीं, लेकिन नहीं होते हैं, तो दैट इज़ बेटर। सस्टेनेबल है, बहुत देर तक भूख नहीं लगती, और एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। ओके, अब एक बात, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मुझे अपने लिए 75 ग्राम से के आसपास दिन भर करने में, मैनेज करने में, 75 ग्राम प्रोटीन खाने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। लेकिन एक चीज़ हमारे पास है, और मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर ये नहीं होता तो मैं क्या करता मुझे नहीं मालूम। देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये नहीं होता। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आप कोई पॉइजन, स्लो पॉइजन खाओगे रोज, तो मुझे पता है कि आप लोग में से सभी ना बोलेंगे कि नहीं, हम स्लो पॉइजन नहीं खाना पसंद करेंगे, कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ अगर आप रोज खा रहे हो, जिसे आपने हमेशा खाना है, लाइफ लॉन्ग खाना है, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके शरीर पे या आपको लॉन्ग रन पे प्रॉब्लम दे। इस प्रोटीन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रोटीन के अंदर न कोई प्रिजर्वेटिव है, न कोई आर्टिफिशियल कलर है, न आर्टिफिशियल टेस्ट। इसका मतलब कोई भी नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं है इसके अंदर जो आपको प्रॉब्लम कर सके। ओके, अगर आपको ये नहीं खाना है तो आप क्या कर सकते हो? दिन में आप 11 अंडे खाइए, होल अंडे, हाँ, पूरे अंडे खाइए, तब जाके आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। लेकिन साथ में आप ये भी याद रखिए कितना कैलोरी आपको मिल रहा है। 780 कैलोरी आपको वहाँ से मिला, और फैट कितना मिल गया वो आप ध्यान रखिएगा। और क्योंकि एग नॉनवेज सोर्स है, मुर्गी से आ रहा है, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होगा। आपको अगर बनाना खाना है तो दिन में 50 बनाना आपको खाने पड़ेंगे, तब जाके आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। आलू आपको 25 खाने पड़ेंगे, तब जाके आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। दूध के आपको 8 ग्लास पीने पड़ेंगे, तब जाके आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, लेकिन उससे 1256 कैलोरी मिल जाएगी। ओके, और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिले अभी आपको। कर्ड आपको 8 कप खाने पड़ेंगे, दही, तब जाके आपको उतना प्रोटीन मिलेगा। लेकिन साथ में कैलोरी देखिए कितना है। इसके अगेंस्ट में अगर आपने ये प्रोटीन खा लिया, 1 चम्मच प्रोटीन 10 ग्राम आता है, उसमें 8 ग्राम प्रोटीन होता है। 1 चम्मच प्रोटीन में 10 ग्राम पाउडर आता है, उसमें 8 ग्राम प्रोटीन होता है। आप देखिए कितना सिंपल है, ना कोई फैट आया साथ में उसके, और सिर्फ 40 कैलोरी, प्योर प्रोटीन। ओके, ये आपका कई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये आपका फाउंडेशनल हेल्थ बास्केट है। अगर आपको अपने शरीर को एकदम स्वस्थ रखना है, और ये हिंदुस्तान में किसी को भी अगर कोई बोले कि मुझे क्या खाना चाहिए, तो ये वो चीज़ें जो उसे खानी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है उनके जीवन में। ओके, प्लांट प्रोटीन 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। न्यूट्रीलाइट डेली प्लस बेसिकली ये मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल टैबलेट है। फाइबर, जो फाइबर सप्लीमेंट है। सैल्मन ओमेगा, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर, और प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये आपका हेल्थ बास्केट के अंदर आ ही जाता है। और अगर आपको कोई इशू नहीं है, कैल्शियम इस पर ऐड कर दीजिए। और क्या करना चाहिए इसके अलावा? हर सुबह भगवान को धन्यवाद देते हुए अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करिए, दिन की शुरुआत करिए। अपना न्यूट्रिशन पूरा खाइए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए। अपने गोल को क्लियर रखिए कि हमें क्या चाहिए, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हेल्थ में, फाइनेंस में, कहीं भी, है ना। और उसके लिए कोई नई चीज़ सीखनी है, उसको रोज़ सीखिए। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा,
एक्सरसाइज रोज करिएगा, क्योंकि आपके हेल्थ के फाउंडेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रुचिता। Thank you so much, Manoj, for explaining it so wonderfully. I think we all understand the importance of our fundamental supplementation now. With that, guys, we come to an end of this session. Important notice is that due to Diwali, we'll not be having a session on Monday. Instead, Friday. Till then, see you in the next one. Till then, good night. Stay safe. Thank you.